Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Today my topic belongs to animal kingdom. I will take phylum COELENTERATA and CTENOPHORA in my today's topic. First of all, we'll study about phylum COELENTERATA. It is also called as phylum CNIDARIA. The word COELENTERATA comes from the Greek word koilos means cavity and enteron means intestine. That means their cavity, which is a cavity in them, but that is not a body cavity. Their cavity acts as intestine for them. And the word cnidaria, it comes from the Greek word cnide means nettle or stinging cells, with which they use these cells for their offense or defense. This phylum evolved more than 600 million years ago in the Proterozoic era. It has more than 9,000 species. The stinging nature of cnidaria was first studied by Aristotle long back in 380 BC to 322 BC, who named them Cnidae. Aristotle named them Cnidae. Pesonel 1723 recognized them to be animals. Their animal nature was studied by Pesonel. The term COELENTERATA was coined by Leuckart in 1847. The present phylum has been delimited by Hetzek 1888, who also called it Cnidaria. So these are some of the examples from the phylum COELENTERATA. This is Adamsia, Hydra, very common example, Aurelia and Obelia. Now we'll study some general characters of this phylum. Habitat, first of all, habitat and natural history. These are aquatic animals, mostly marine. Marine means sea water or found in oceans. A few brackish and freshwater species like Hydra is also present in this phylum. Animals are solitary or colonial. Solitary means they may live alone, or colonial means they may live in colonies, or they form groups. Many of them are sedentary. Sedentary means they are fixed. They are fixed to one position. For example, coral reefs. जो आपने देखे होंगे अंडर वाटर सी में, जब कभी भी कोई भी पिक्चर दिखाई जाती है, कोई भी किसी भी मूवी में या कहीं पे आपने देखा होगा, कलरफुल रॉक्स होती हैं. वो कलरफुल रॉक्स कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं. और वो कोरल रीफ्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम COELENTERATA से. अ फ्यू आर फ्री फ्लोटिंग. कुछ फ्री फ्लोटिंग है फाइसेलिया जो स्विम नहीं करते, और कुछ एक्टिव स्विमर्स हैं लाइक ऑरेलिया. Then the body form. The shape is various. They are found in various shapes. Some are filamentous, कुछ unbranched हैं, कुछ branched हैं, कुछ fan like shape है कुछ की, कुछ vase like हैं और कुछ umbrella like हैं. And their size varies from few millimeter to 2 meters. Then symmetry. Radial symmetry is found in some, whereas some sea animals possess biradial symmetry. Bilateral symmetry occurs in Pennatuda. Some of the species, they show bilateral symmetry. Then germ layers, they are diploblastic. That means they have only two germ layers, ectoderm and endoderm. Mesoderm is absent. Like sponges. Level of organization. They have upgraded level of organization as compared to sponges. Sponges have cell level of organization, but they have tissue level. In these organisms, cells combine together to form tissues. Then body plan. Blind sac body plan is present. That means their digestive system is incomplete. They have mouth, whereas other opening is absent. That means there is a single opening which functions as both mouth and anus. It leads into a cavity called gastrovascular cavity. Then they show polymorphism. Cnidarians have basically two types of zooids or individuals. One is polyp. Polyp is this form of shape. In this diagram you can see this polyp form. It is cup shaped like Hydra. Hydra, if we longitudinally cut Hydra, it will appear like this. So this cup shaped structure organisms, they are polyp shaped.
and the other one is medusa, which are umbrella shaped like this Aurelia. Polyp is sessile cylindrical structure with mouth and tentacles. Polyp में ये mouth है और tentacles होंगे like sea anemone, hydra. Mouth is facing upwards. Medusa is free swimming zooid. Medusa जो है वो free swimming है with the help of these tentacles with mouth and tentacles facing downward. इसमें mouth और tentacles downward हैं, hence regarded upside down polyp with reduced stalk. Medusa may form polyps. Medusa से polyps originate होंगे कुछ species में और then by the process of sexual reproduction. Medusa में gametes produce होते हैं sperm and ova and they fuse together to form polyp like structure. और polyps asexual reproduction से फिर किसकी formation करेंगे? Medusa. So it has been said that they show alternation of generation. Medusa से polyp produce होगा और polyp से medusa. But not in all the organisms of the coelentrates. Only some of the organisms they show alternation of generation. Many variations occur in zooid forms with the number. Zooid means individual. Zooid means individuals. With a number of them being present in the same animal. The phenomena is called as polymorphism. Same organism show different forms, so it has been called as polymorphism. Obelia is trimorphic with 3 types of zooids: polyps, blastostyles, and medusae. Then cephalization. Cephalization means concentration of the nervous system at the upper anterior part of the body, forming a brain-like structure. Brain is not present in all the invertebrates, but a brain-like structure, concentration of the nervous system, that is absent in these coelentrates. Appendages absent. इनमें कोई appendages नहीं है जिसकी वजह से ये मूव कर सकें except tentacles. Tentacles इनमें present है. Tentacles tactile हैं. Tactile means जो touch को feel करते हैं. Hollow है for example in hydra और कुछ में ये solid होते हैं जैसे obelia में. Threads which are used in food capturing, offense and defense. Then next is coelom. Coelom is body cavity. Coelom किसको बोलते हैं? Body cavity को. और ट्रू बॉडी कैविटी कौन सी है? जो मीजोडर्म से लाइन होती है. अब इनमें मीजोडर्म ही एब्सेंट है तो इनमें बॉडी कैविटी भी एब्सेंट है. नो डाउट इनमें ये एक कैविटी प्रेजेंट है. आप इस डायग्राम में देख सकते हो जिसमें हाइड्रा को कट करके दिखाया गया है. यहाँ पर ये कैविटी प्रेजेंट है. ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन का एक पार्ट दिखाया गया. यहाँ पर ये बीच में कैविटी है. ये कैविटी जो है दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ये कैविटी कौन सी है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है. बट दिस इज नॉट द ट्रू सीलोम. सो दीज नाइडेरियंस दे आर असीलोमेट्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन. यहाँ दिस इज द माउथ ऑफ द हाइड्रा. यहीं से वाटर करंट एंटर करती है. यहाँ से घूम के ये वाटर करंट वापस यहीं से लीव करेगी बॉडी को. जब वाटर करंट एंटर करेगी अपने साथ फूड पार्टिकल्स को ले जाएगी और वो फूड पार्टिकल्स कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे? ये सेल्स जो बाहर, ये अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस जो लाइनिंग है. और ये जो बाहर वाले सेल्स हैं एपिथेलियो मस्कुलर लाइनिंग जो है, ये सेल्स बाहर वाली वाटर करंट से फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे. अब फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सेल्स के अंदर क्या होगी? फूड की डाइजेशन. सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होगी. वेयर एज कुछ यहाँ पर एंडोथीलियो ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो इस कैविटी के अंदर भी एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर भी डाइजेशन होगी. दैट मीन्स ये कैविटी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसे भी पार्शियली एक्ट करेगी. इसीलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा गया. वेस्कुलर इसलिए क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड की मूवमेंट है. कौन सा फ्लूइड है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. जो बाहर पानी है, जिस पानी में ये प्रेजेंट है, वही इसके हैबिटेट का पानी ही मूव करेगा. तो वेस्कुलर कैविटी के जैसे भी एक्ट कर रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसे भी एक्ट कर रहा है, इसलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज को बोलेंगे. इसलिए इसमें डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है. इंट्रासेलुलर मतलब विद इन सेल, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर भी है. एक्स्ट्रा सेलुलर को हम इंटरसेलुलर भी बोलते हैं. दैट मीन्स बिटवीन टू सेल्स, दैट मीन्स आउटसाइड सेल. देन सर्कुलेशन ऑफ फूड. The partially digested food is picked up by endothelial-muscular or nutritive cells for digestion. The digested food is supplied to all other cells of the body. All the cells are in contact with water.
फॉर रेस्पिरेशन जितने भी सेल्स हैं वो वाटर के साथ कांटेक्ट में है, अंदर वाले सेल्स भी और बाहर वाले सेल्स भी, वो खुद ही वहां से पानी से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में रिलीज कर देंगे। सो डायरेक्टली वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑर्गन। इवन इस इन सीलेंट्रेट्स में ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं। सो इनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम, हमें ऑर्गन नहीं मिलेगा, इनमें हमें सिर्फ टिश्यूज ही मिलेंगे। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में भी इनमें जनरल सरफेस से होगी और मोस्टली ये एमोनोटेलिक है, दैट मीन्स दे रिलीज एमोनिया। दिस इज एमोनोटेलिक, AMMONO। देन देयर बॉडी वॉल, इनकी बॉडी वॉल अभी हमने देखा वहां पर, ये 2 लेयर्ड है। outer one is made up of ectoderm and inner one is made up of endoderm, and mesoderm is absent. Instead in place of mesoderm तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं या मिजेनकाइम भी बोलते हैं। जो बाहर वाली एपिडर्मिस है उसमें एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स हैं, ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, नाइडोब्लास्ट्स हैं, विद और विदाउट जर्म सेल्स। जर्म सेल्स इनमें प्रोड्यूस भी हो सकते हैं और नहीं भी। और जो गैस्ट्रोडर्मिस है, अंदर वाली लाइनिंग है, वो किससे बनी है, एपिथेलियोमस्कुलर सेल से, एंडोथेलियो ग्लैंड सेल से। सेंसरी सेल्स भी हैं जिनमें आप ये प्रोजेक्शंस देख रहे हो, ये सेंसरी सेल्स हैं, दीज आर मेंट फॉर सेंसेशन। लेकिन इनमें नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि इनमें ऑर्गन सिस्टम तो है ही नहीं, तो इनमें सिंपल नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं और वो नर्व नेट बना देते हैं। नर्वस टिश्यू है इनमें, सिस्टम नहीं है। इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और इनमें भी जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देन इनमें स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स, जिनके नाम पर इनका इस फाइलम का नाम नाइडोब्लास्ट रखा गया। सी साइलेंट है, इट्स नाइडोब्लास्ट। ये स्टिंगिंग सेल्स हैं which have given the name Cnidaria to these coelentrates. Each nidoblast has a sensory bristle. हर नाइडोब्लास्ट में एक सेंसरी ब्रिसल है जिसको नाइडोसिल बोलते हैं, और एक ओपरक्यूलम है। ओपरक्यूलम होता है लिड लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन जैसा। एक सैक है जिसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। The nematocist contains a long thread like tube developed by invagination. ये एक ट्यूब डेवलप हुई है जो इन्वेजिनेशन से है। जब भी इस नाइडोसिल से कोई टच करेगा या इसमें सेंसिटाइजेशन होगी, उस टाइम पर ये ओपरक्यूलम ओपन होगा और ये जो थ्रेड है ये बाहर की तरफ इवर्ट हो जाएगा और अटैक करेगा जो भी इसका ऑफेंस, जो इसका कोई प्रे है या प्रीडेटर है, उसके ऊपर ये अटैक करेगा अपने ऑफेंस के लिए या फिर डिफेंस के लिए। द ट्यूब में बी स्मूथ और बियर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस ट्यूब में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे बार्ब्स हो सकते हैं, बार्बलेट्स हो सकते हैं। नेमेटोब्लास्ट्स एक्सप्लोड व्हेन नाइडोसिल इज टच्ड और सेंसिटाइज्ड। द परमेबिलिटी ऑफ नेमेटोसिस्ट इंक्रीजेस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्स। तब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है जब ये नाइडोसिल टच होगा, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक डेवलप हो जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होने से ये जो ट्यूब है इस पे एक प्रेशर अप्लाई होगा और ये बाहर की तरफ इवर्ट हो जाएगी, और जो भी इसका प्रे होगा या प्रीडेटर होगा उसको ये स्टिंग करेगा। और ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये टेंटेकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या आउटर बॉडी वॉल में प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। अगर ग्रुप्स में होंगे तब हम इनको बैटरीज या नाइडॉन्स बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज सेंसेशन। सेंसरी सेल्स अकर इन द बॉडी वॉल। अभी हमने देखा कि इसकी बॉडी वॉल में सेंसरी सेल्स प्रेजेंट थे। स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स इंक्लूड स्टेटोसिस्ट्स फॉर बैलेंसिंग एंड ओसिलाई फॉर फोटोसेंसिटिविटी। Nervous system. Neurites of the nerve cells form a sort of network throughout the body. However, the nerve plexus does not have organic continuity because small, क्योंकि इनमें nerve net present है। nerve net में इनमें different nerve cells में small spaces present हैं, जिससे इनके मैसेज की continuity नहीं रहती और इनका मैसेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, इसलिए इनके नर्व सेल्स जो हैं अपोलर हैं या नॉन पोलराइज्ड हैं। गैंग्लिया एंड हायर ऑर्गेनाइजेशंस आर एब्सेंट। स्केलेटल सिस्टम।
हॉर्नी या कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन कुछ केसेस में प्रेजेंट होता है, जैसे कोरल्स, दे आर हार्ड रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर स्पेशलाइज्ड टू सिक्रीट कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बहुत कॉमन है, लाइक आपने बड़े सारे एग्जांपल्स पहले भी छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, इनमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल मोड्स जो हैं वो इनके एग्जांपल्स में हमें मिलते हैं। सीलेंट्रेट्स हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इसकी पावर जो रीजनरेशन पर स्टडी किसने की थी, ट्रेम्बले नाम के साइंटिस्ट ने 1744 में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं एनिमल्स, लाइक बोथ द गोनाड्स दे आर फाउंड इन द सेम ऑर्गेनिज्म, और डायशियस भी हो सकते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल दे आर सेपरेट। Ductless gonads occur in coelentrates. They can be epidermal or gastrodermal in origin. Development, fertilization इनमें external या internal हो सकती है. Cleavage is holoblastic. Development is direct or indirect. In indirect development इनमें larval stage present होती है, जैसे planula या hydrula, hydrotuba या cyphistoma. Then next phylum is phylum Ctenophora. Ctenophores फ्री स्विमिंग है, ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है, सॉफ्ट बॉडीड मेरीन एनिमल्स है, जिनमें बायरेडियल सिमेट्री है, कॉम्ब लाइक सीलियरी प्लेट्स, आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो, सीलियरी प्लेट्स प्रेजेंट होंगी हैं, और ये ट्रांसपेरेंट है। और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये बायोल्यूमिनिसेंट है, दे एमिट लाइट। लैसोसेल्स, इनमें लैसोसेल्स हैं बट नेमेटोसिस्ट्स इनमें नहीं है। दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स बिकॉज ऑफ देयर शेप, और इनको कॉम्ब जेलीज भी हैं। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम स्टडी करें तो ये सबसे पहले हैबिटेट और नेचुरल हिस्ट्री, ये फ्री स्विमिंग है, मेरीन है, सॉलिटरी मींस सेपरेट हो सकते हैं, पेलेजिक एनिमल्स हैं, नो पॉलीमॉर्फिज्म, कोई इनमें डिफरेंट फॉर्म्स हमें नहीं मिलती, एंड नो अटैच्ड स्टेजेस वर फाउंड। बॉडी फॉर्म, द बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, इनमें बॉडी ट्रांसपेरेंट है, जिलेटिनस है, पियर शेप्ड है, सिलिंड्रिकल और फ्लैट और रिबन लाइक। दे हैव एन एक्सटर्नल सरफेस विद कॉम्ब लाइक और 8 ciliary plates for locomotion. Hence name as comb jellies. They have a pair of long solid retractile tentacles. They lack nematocysts. इनमें नहीं होते nematocysts, stinging cells नहीं होते जैसे coelentrates में थे. Then symmetry. They have biradial symmetry, body along an oral aboral axis. They show cell level of organization or tissue level of organization. Body cavity, they are acoelomates because they are diploblastic. इनमें mesoderm layer ही नहीं है, तो body cavity, true body cavity जो है वो इनमें हो ही नहीं सकती. So they are acoelomates. इनमें cavity जरूर है लेकिन वो body cavity नहीं है. With the outer, इनमें outer epidermis है, inner gastrodermis है, और बीच में mesoglea है, just like जैसे हमने coelentrates में पढ़ा. Then digestive system. Their digestive system contains mouth, stomachium, complex gastrovascular canals, and 2 aboral anal pores. Special cells. They have special adhesive and sensory cells, that is coloblasts or lasocells present in tentacles, which helps in food capturing. Then organ systems. इनमें they lack skeletal, circulatory, क्योंकि इनमें tissue level of organization है, organ system है ही नहीं, तो इनमें हमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम लाइक स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमें नहीं मिलेंगे. नर्वस सिस्टम, देयर नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप एंड द एबोरल एंड बियर्स अ सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड स्टैटोसिस्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो ये मोनोएशियस हैं, दैट मीन्स हर्मेफ्रोडाइट, बोथ द सेक्सेस दे आर फाउंड इन द सेम इंडिविजुअल. गोनाड्स इनमें एंडोडर्मल हैं, situated on walls of digestive canals, that means inside the body. डेवलपमेंट, इनमें डायरेक्ट है, और इनमें अगर लार्वल स्टेज कभी हो तो वो सीडिपेड लार्वा है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे लैक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, whereas regeneration is common in them. Thank you. We'll continue with the other phylums of the animal kingdom in the next videos.